Yeah, God has been teaching us His word very powerfully in these Bible studies, which will deliver us from the power of sin. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस बाइबल अध्ययन के लिए। और पिछले कुछ समय से जो हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पाप से हमें छुड़ाने की वो जो सामर्थ्य है, परमेश्वर उसके विषय में हमारे जीवन में कार्य करे। Yeah, this chapter is speaking about being a slave to sin to a slave to righteousness. और यह जो अध्याय है, रोमियो का अध्याय 6, यह इस विषय में बात करता है कि पाप के जो दास थे वो छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास बनाए जाएं। A slave to sin has no option but to sin. जो पाप का दास होता है उसके पास और कोई विकल्प नहीं होता, चुनाव नहीं होता कि किसी और बात को करने के लिए, वो केवल पाप करता है। A slave to righteousness has no option to obey Christ and righteous. लेकिन जो धार्मिकता का दास होता है उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होता चुनाव करने के लिए, परंतु वह केवल धार्मिकता के कार्य, भले कार्य जो यीशु ने किए उसके समान वह करता है। So 6:1, the first verse we'll read. What shall we say then? Shall we go on sinning so that the grace may increase? और पहला वचन हम जो पढ़ते हैं, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? The second verse says, by no means. We are those who have died to sin. How can we live in it any longer? और दूसरा वचन, कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? So what is the context of this? Because why is Paul saying that, what shall we say then? Shall we continue in sin? What is the context? Context we can see in verse 20 of chapter Romans 5. Brother George, your network is a little bit slow. Looks like your voice is cracking. If you want to put your video off, you see this. Brother, please can you repeat once again? Yeah, the verse we read now is Romans 6:1 and 2. The context of this verse we can see in Romans 5:20. और जो हमने वचन अभी पढ़ा रोमियो के अध्याय 6 वचन 1 और 2, इसके संबंध में जो संदर्भ लगता है वह वचन हम रोमियो के अध्याय 5 वचन 20 में पढ़ते हैं। Is the voice clear now, brother? Now it's clear. Okay. So what Romans 5:20 says, the law was brought in so that the trespass might increase. But there where sin increased, grace increased all the more. और हम रोमियो 5 के 20 में पढ़ते हैं, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। So when it says that the law was brought in so that the trespass might increase, but where there is sin increase, grace increased much more. This does not mean that when you do more sin, you get more grace. और हमने जो यह वचन पढ़ा कि व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। इसका मतलब यह नहीं कह सकते हम कि हम और ज्यादा अधिक पाप करते रहे ताकि हम पर और ज्यादा अनुग्रह होता रहे। So the purpose of the law was actually an instrument to weigh how much sin is there in us. व्यवस्था केवल एक माध्यम था, एक जरिया था जिसके द्वारा यह दर्शाया जाए, बताया जाए कि हमारे अंदर कितना पाप भरा है। So when the law was brought in, the how much sin is there is very clear to us. Earlier it was not clear to us. और जब व्यवस्था हमें दी गई तब हमारे अंदर कितना पाप था यह हमें ज्ञात हुआ, पता चला, लेकिन उसके पहले हमें पता नहीं था। So the question is, what shall we what where sin increased, grace increased much more. Why the sin increased? Because sin was there was an instrument to know how much sin was there. That is why the sin increased, not because we sinned more. और हम जब कहते हैं कि पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ, तो जब हम कहते हैं कि पाप बहुत हुआ उसका मतलब यह है कि जब व्यवस्था दी गई उससे हमें ज्ञात हुआ कि कितना अधिक हमारे भीतर पाप है। So this verse is not talking about the sinning so that sin increase and the grace increases, but it is because our sin become more and more clear to us, so that we are in need of grace. So God gave more grace. और जो हम यह वचन देखते हैं कि पाप अधिक हुआ तो अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, यह वचन यह नहीं कहता कि पाप और अधिक होता रहे तो अनुग्रह मिले, परंतु यह वचन इस विषय में ऐसे बात करता है कि हमारे भीतर जो पाप था जिसके हमें विषय में पता नहीं था, व्यवस्था के द्वारा उसका ज्ञात हमें होता है कि हम कितने अधिक पापी थे, और ताकि हमें
जरूरत महसूस हो कि हमें हमें अनुग्रह की आवश्यकता है। So, for example, when the COVID testing came in, the COVID the disease did not increase, but we understood how many people are actually sick. और जैसे कि हम कोरोना वायरस जो कोविड बीमारी है उसका उदाहरण लेते हैं कि जब यह बीमारी आई और जब जांच नहीं होती थी तब पता नहीं था कि कितनों को यह बीमारी हुई है, लेकिन जब जांच आई तब पता चलने लगा कि कितनों को यह बीमारी हुई है। So that more medicine could be brought in, which is ताकि और grace. ताकि और ज्यादा उसके विषय में इलाज लेकर खोज किया जा सके, जो कि अनुग्रह है। The third verse says that, or don't you know that all of us who were baptized into Christ were baptized into his death? और तीसरा वचन कहता है रोमियो 6:3, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। So, all of us who were baptized into Christ were, before that, we can say second verse again further says that how can we live in it any longer? We cannot live in sin any longer. Why we cannot live in sin any longer? Because we are dead we are dead to sin. और हमने जो ये वचन पढ़ा उसके ऊपर जो दूसरे वचन का दूसरा भाग देखते हैं, तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए। जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए, और हम आगे पाप में जीवन नहीं जी सकते। कारण यह है कि हम तीसरे वचन में पढ़ते हैं कि हम मसीह यीशु के साथ मर चुके हैं। So we will just read verse 6 before we go to verse 3. Verse 6 says that, for we know that our old self was crucified with him, so that body ruled by sin might be done away with, that we no longer should be slaves to sin. और हम तीसरे वचन से पहले हम छठवें वचन की ओर जाते हैं। हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। So how are we how are we saved from sin? How are we saved from sin? By dying to sin. तो हमारा पाप से उद्धार कैसे होगा, हम पाप से कैसे बचाए जाएंगे कि हम पाप के लिए मर कर पाप से बचाए जाएं। We had a body which was ruled by sin, which was a slave to sin. When Christ died, we our body of sin died along with him. और जब हमारा जो शरीर था वह पाप के दासत्व में था और पाप उसके ऊपर प्रभुता करता था, लेकिन जब मसीह यीशु ने अपनी जान दी, बलिदान दिया, तब उसके साथ हमारा ये जो पापी मनुष्यत्व है यह भी उसके साथ चढ़ाया गया। So when Christ was crucified, we were also crucified along with him. That we can see in Ephesians 1:4. ताकि मसीह यीशु जब क्रूस पर चढ़ाए गए थे तो हम भी उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। हम इफिसियों अध्याय 1 के वचन 4 में देखते हैं। How did we also were crucified with Christ? कि हम कैसे मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। It was by selection. That is in Ephesians 1:4 we see, for he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight in love. और हम इफिसियों के 1 के 4 में पढ़ते हैं कि कैसे हम छुड़ाए गए कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। We were in Christ when Christ died on the cross because we were chosen. We were by election. We were inside in Christ. और मसीह यीशु जब क्रूस पर चढ़ाए गए थे तब हम भी उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। क्यों? क्योंकि उसने जगत की उत्पत्ति से मुझे चुन लिया उससे पहले कि मैं उसमें रहूं। 2 Timothy 1:9, if you read, it says that he was chosen us before the beginning of time. 1 Timothy 1:9 brother. 2 Timothy. 2 Timothy. Yeah. दूसरा तिमोथी 1 के 9 में हम पढ़ते हैं कि he was before the beginning of time. कि वह समय से भी पहले थे। So when you look at the cross of Jesus Christ, there were 3 crosses, thieves on both sides. In the middle, 2 thieves were crucified on both sides of Jesus, and the middle Jesus was crucified. और जब हम यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के उस दृश्य को देखते हैं, कल्पना करते हैं, तो हम देखते हैं वहां 3 क्रूस थे जिसमें यीशु के दाहिने और बाएं और एक अपराधी को, चोरों को लटकाया गया था और बीच के क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ाया गया था। So when we look at the middle cross, we see Jesus, but something which is unseen is there. All of us who believed in Christ were also a part of that cross. They were also on the cross along with Christ.
लेकिन हम जब देखते हैं उस बीच के क्रूस पर, हम केवल यीशु मसीह को ही पाते हैं उस क्रूस पर चढ़ाए हुए। लेकिन यदि हम गौर से उस पर मनन करें तो हम पाते हैं कि उसके साथ हम सभी भी उस क्रूस पर चढ़ाए गए थे, हम सभी This उस is क्रूस what, के भाग थे। as we read, this happened by election. When God, before the beginning of time, God has found us in Christ. So wherever Christ is, we are also there. और यह कारण यह है कि क्यों हम मसीह यीशु के साथ वहां क्रूस पर थे, क्योंकि जगत की उत्पत्ति से, समय की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में होकर चुन लिया था और हम उसके साथ थे। How do we die? We also die when Christ died because it's by faith. तो अब कैसे मसीह यीशु क्रूस पर चढ़ाएगा तो मैं भी उनके साथ मरता हूँ कि मैं विश्वास करने के द्वारा। So when we are to sin, the body which was ruled by sin died. We are no longer under the control of sin. तो हमारा जो पापी मनुष्यत्व है, जो पापी शरीर जो पाप के दासत्व में था, जब वह क्रूस पर चढ़ाया जाता है, मर जाता है, तब वह आगे को पाप के दासत्व में नहीं रहता। That is how we get victory over sin. और इसी रीति से हम पाप के ऊपर जय प्राप्त करते हैं। So how did people came to know that Jesus was dead on the cross? और लोगों ने कैसे जाना कि यीशु मसीह ने क्रूस पर दम तोड़ दिया, उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए हैं? So a soldier took a spear and pierced his side. हमने देखा कि एक सैनिक आकर एक भाला लेकर उसकी पसली को छेदता है, भेदता है। And the blood and water came out, and then they came to know that Jesus is dead. और तब उसके उस छेद में से लहू और पानी बहना शुरू हो जाता है और इसके द्वारा वे सैनिक पता लगाते हैं कि हाँ, यीशु मसीह ने प्राण छोड़ दिए। How can people know that we are also dead along with Christ? तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम मसीह यीशु में मर चुके हैं? The same way, when somebody pierces us, when somebody insults us, when somebody say something bad against us, somebody spoke us with their tongue or with their in their words, how we react will indicate whether we are actually dead or not. तो हमें हमारे साथ में भी जो लोग बर्ताव करते हैं और हमें जब भाले से छेदते हैं या हमारा अपमान करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, और तब हम किस रीति से उनके प्रति व्यवहार करते हैं, यह इस बात को संकेत करता है। If we are still living in sin, that means we are not dead. We have to really believe that when Christ died, we died with him. और यदि आप अब भी पाप में जीवन बिता रहे तो आप यीशु मसीह के साथ मरे नहीं हैं। आपको इस बात पर विश्वास करना है कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, तब आप भी उनके साथ क्रूसित हुए। 2 Corinthians 5:14 says that when one died for all, therefore all died. और दूसरा कुरिन्थियों 5:14 कहता है कि मसीह का प्रेम विवश करता है। हम समझते हैं कि जब सब के लिए मरा तो सब मर गए। So this is a very important fact we should never forget. How sin came. When one man, Adam, sinned, we become sinners. So because of one man, Jesus Christ, righteousness and death on the cross, we were freed from sin. और हमें इस बात पर जो वास्तविक सत्य है, इस पर विश्वास करना है कि जब एक व्यक्ति आदम ने जब पाप किया तो हम सभी भी पापी गिने गए और हम भी उसके भागी थे। तो वैसे ही जब मसीह यीशु आए तब उन्होंने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर उन्होंने अपने प्राण दिए, तब हम भी उनके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। When Adam sinned, we were inside him, so all his sins came upon me, each one of us. कि जब आदम ने पाप किया तब मैं भी आदम के साथ था, तो वह पाप मेरे सर पर भी आ पड़ा। So when Christ died on the cross, we were inside him by God's election. So when he died, I also died with him. When I died to sin. लेकिन मसीह यीशु जब क्रूस पर चढ़ाए गए तो परमेश्वर के चुनाव करने के द्वारा, चुन लिए जाने के द्वारा, मैं भी उस समय मसीह यीशु में क्रूसित हो रहा था और उसके द्वारा मैं क्रूस पर यीशु के साथ मेरी भी मृत्यु हुई कि मैं पाप के लिए मर जाऊं। So the victory over sin does not come by we taking decisions, but victory over sin comes by believing the fact that our old man, our self is crucified with Christ and it is dead. और पाप के ऊपर जय केवल हमारे प्रयत्न के द्वारा नहीं आता, परंतु पाप के ऊपर जय यीशु मसीह के इस बात पर विश्वास करने के कि वह जब क्रूस पर चढ़ाया गया, मेरा पुराना पापी मनुष्यत्व भी उसके साथ क्रूसित हो गया। We'll come back to verse 3. It says that, don't you know that all of us who were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? और तीसरा वचन की ओर हम फिर से लौट कर आते हैं। हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया।
See, when we take baptism, we are actually asking for a share of Jesus' death on the cross. और इसका अर्थ यह है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब हम मांगते हैं मसीह यीशु के साथ क्रूसित होने के उस बात में हम अपने भी भाग को सहभाग होने को मांगते हैं। So, it is like a death certificate. Christ died on our behalf. So, in the death certificate, we get a death certificate where our name is mentioned. I am dead. Each one of us is dead to sin. That is what baptism signifies. और यहाँ पर जो बपतिस्मा है वह इस बात को संकेत करता है कि जैसे यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, उन्होंने मेरे प्रति मेरे लिए मेरे खातिर उन्होंने अपने प्राण को दिया, वहां पर वो मर गए, लेकिन उनके साथ साथ मैं भी वहां था। तो वह जो मृत्यु प्रमाण पत्र होता है उस पर मेरा नाम लिखा हुआ है कि मैं पाप के लिए मर चुका हूँ। So all those who are taking baptism should always remember, when you take baptism, you are taking a share of Christ's death on your behalf. तो हर एक व्यक्ति, आप जो बपतिस्मा लेते हैं और लिए हैं, आप इस बात पर स्मरण रखने पाए कि आपने मसीह यीशु का जो क्रूस पर उसने अपने प्राण को दिया, उसके साथ में आप सहभागी हैं और उस बात की ओर दर्शाते हैं। So, when we go and pay fees for our children, suppose we have 1 or 2 children, when we go and pay fees for them in the school, the receipt of the fees is not in our name, it is in the child's name. और जैसे कि हम स्कूल में हमारे 1 या 2 जो बच्चे होते हैं उनके हम फीस भरने के लिए जाते हैं, और जब हम फीस भर देते तो जमा करने के बाद वो जमा की जो रसीद होती है, उस रसीद पर हमारा नहीं, हमारे बच्चों का नाम लिखा होता है। Yeah, that is what. So when Christ died, my name is there in that death certificate. So it is as if I have died. तो जब मसीह यीशु ने क्रूस पर अपने प्राण दिए तो जो मृत्यु का प्रमाण पत्र था उस पर मेरा नाम लिखा हुआ था कि मैं भी मर चुका हूँ। It's very important for us to believe this. और इस बात पर विश्वास करना हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। Fourth verse, we were therefore buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through glory of Father, we too might live a new life. और रोमियो 6 का 4था वचन, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन किसी चाल चलें। So what is that baptism signifies? Baptism signifies the death of Christ on the cross, or on behalf of each one of us. तो बपतिस्मा जो है वह क्या दर्शाता है? बपतिस्मा यह दर्शाता है कि यीशु मसीह की क्रूस की उस मृत्यु को दर्शाता है जो मेरे लिए था, मेरे खातिर। So what is the resurrection of Christ signifies? तो मसीह यीशु का जो जिलाया जाना है, उसका जो पुनरुत्थान है, वह क्या दर्शाता है? And we can see in the second part of the verse, the resurrection of Christ signifies our new life, living a life without sin, a new life. तो हम वचन का 4थे वचन का दूसरा भाग पढ़ते हैं कि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे हम नए जीवन की सी चाल चले, मतलब कि हम ऐसे जीवन की चाल चले जिसमें हम आगे को पाप के लिए नहीं जीते, पाप नहीं करते। So the death of Christ signifies a death of our body, which is a slave to sin, so that we don't sin anymore. But the resurrection of Christ signifies we living in a new life, a life without sin. और हम जब बपतिस्मा के विषय में बात करते हैं, बपतिस्मा दर्शाता है हमारी उस क्रूस पर यीशु मसीह के साथ की उस मृत्यु को, जिसमें हमारा पाप का मनुष्यत्व पाप के लिए मर जाता है, और यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है, जी उठना, वह इस बात की ओर संकेत करता है कि हम उसके साथ मसीह यीशु में नए जीवन को जी रहे हैं। So what is the proof of we raising along with Christ when he resurrected? तो इस बात का क्या प्रमाण है, सबूत है कि हम भी यीशु मसीह के साथ जब वह जिलाया गया, हम भी जिलाए गए। It is the proof is that we live a new life, not the old life. We live a life without sin. और इसका प्रमाण यह है कि हम एक ऐसा नया जीवन जीते हैं जिसमें पाप नहीं होता, हम पाप मुक्त होकर वह जीवन को जीते हैं। We can see that in Colossians 3:1. Colossians 3:1 says that since then you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. और हम कुलुस्सी अध्याय 3 के वचन 1 में पढ़ते हैं, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। So, fifth verse. For if we have been united with him in death like this,
we will certainly be united with him in resurrection like this. और रोमियो 6:5, क्योंकि यदि हम उसके मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। So this is what this is again a fact which we should all believe. If we are united with Christ in his death, it is certain that we will also be united with him in his resurrection. और यह एक ऐसा वास्तविक सत्य है जिस पर हम सभी को विश्वास करना है कि यदि मैं यीशु मसीह की मृत्यु में उसकी समानता में जुट गया हूं तो उसके जी उठने में भी मैं उसके समानता में जुट जाऊंगा। That is a guarantee that we can live a new life, a life of righteousness. और यह इस बात का आश्वासन है, दृढ़ आश्वासन हमें है कि हम एक उस नए जीवन को जीते हैं। Because Christ died in my place and I will live in his place in his resurrection. कि यीशु मसीह ने मेरे बदले में अपनी जान दी और मेरे बदले में वे मारे गए और मर गए, तो अब मैं जो जीऊंगा मैं उनके बदले में उनके लिए जीऊंगा। Sixth verse we already read, seventh verse we'll read now. Because anyone who has died has been set free from sin. छठवां वचन हमने पढ़ा था और 7वां, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। This is a very important statement. What does its statement say? Because anyone who has died has been set free from. This is the secret victory over sin. और यह जो वचन हमने पढ़ा यह बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है, कथन है, जो कहता है कि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा है। How this happens? We have to really believe that it cannot happen by taking a decision, because most of us can say that we have taken so many decisions to come out of sins, but we could never, hold on to those decisions. But when you really believe in the fact that when Christ died, your sinful nature, your sinful body is dead, that faith will make you live a new life. और इस बात की ओर हम कैसे पाप के ऊपर जय पाएंगे कि हमारे दृढ़ निर्णय के द्वारा, कि हमारे दृढ़ निश्चय के द्वारा कि मैं पाप नहीं करूंगा, इसके द्वारा हम पाप पर कभी जय नहीं पाएंगे। हमें इस बात की ओर एहसास करना है कि हमारे शरीर के अंदर जो मनुष्यत्व है उसमें पापी स्वभाव है, और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, इस बात पर जो वास्तविक सत्य है, इस पर विश्वास करने के द्वारा ही हम पाप के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। This may look very foolish. That's why the gospel, Paul says, gospel is foolishness to the people who are perishing. और यह हमें एक मूर्खता जान पड़ती है कि जैसे प्रेरित पौलुस कहते हैं कि क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है। So the root of the sin, the root of the problem is in our body of sin. We can never get rid of our sin as soon as we are living in this body. और जो पाप की जो वजह है, जो मूल है, उसका मुख्य वह जड़ वह हमारा शरीर ही है, और जब तक हमारा शरीर रहेगा तब तक हम पाप के ऊपर जय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। That's why the solution for the problem is putting our body, old man, ourself to death on the cross along with Christ. और इस बात की ओर एक ही समाधान है कि हम कैसे पाप के ऊपर जय पाएंगे, कि हमारे शरीर को कैसे हम मार पाएंगे, कि हमारा जो स्वभाव, हमारा जो शरीर है, उसे हम मृत्यु के लिए दे दें। 8th verse. Now, if we died with Christ, we believe that we will also live with him. और रोमियो 6:8 वचन, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। 9th verse. For we know that since Christ has raised from the dead, he cannot die again. Death no longer has mastery over him. 9वां वचन, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। So 10th verse also we'll read, the death he died to sin once for all, but the life he lives to God. और 10वां वचन, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। So the death of the old man, death of the self which we are talking about, is a once for all ever death. It's not a daily death, it's a once for all ever death. और हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वह जो मर गया वह एक ही बार के लिए मर गया। ऐसा नहीं कि उस पुराने मनुष्यत्व को बार बार मरना होगा, वह एक ही बार के लिए मर चुका है। That's what we read. When Christ he died once, he died. He need not die again. और यही हमने फिर उस वचन में पढ़ा कि मसीह मरे में से जी उठकर फिर मरने का नहीं। The 11th verse says, this is what happened to Christ. 11th verse says the same thing has happened to us also. In the 11th verse, in the same way, count yourself dead to sin, but live to God in
Jesus Christ. और अब हम 11वां वचन देखते हैं और यही बात जो यीशु मसीह के साथ पूरी हुई वह भी हमारे साथ पूरी होगी। 11वां वचन, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। So, as we read in Ephesians, that by election we were in Christ when he passed through the cross and when he resurrected. So, whatever happened to Christ happened to us. When he died to sin, we also died to sin, so that we live a new life. और जैसे हमने इफिसियों के उस अध्याय में उस वचन को पढ़ा कि मसीह यीशु ने हमें चुन लिया कि जिस समय वो क्रूस पर अपने प्राण को त्याग रहे थे मैं भी उसके साथ मारा गया और जैसे ही वो जी उठे वैसे ही मैं भी उसके साथ जी उठा। So, when God tells us to do something, he first of all makes us capable of doing it. और जब परमेश्वर हमें कुछ किसी बात को करने के लिए कहते हैं तो वह हमें पहले सक्षम बनाते, सामर्थ्य बनाते उस बात को करने के लिए। So all the moral teachings in the New Testament is given to those people who actually died to sin. और यह जो वास्तविक सत्य का जो यह वचन है, यह जो समाचार है, यह नई वाचा में केवल उन्हीं लोगों को दिया गया है जो वास्तव में पाप के लिए मर जाते हैं। Because once you are dead to sin, you can obey God's commandments. क्योंकि एक बार जब आप पाप के लिए मर जाते हैं तब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सकते हैं। That's what 12th verse is. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its evil desires. अब 12 वचन में हम यही बात पढ़ते हैं, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। So, what does it say? Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that so that you obey its desires. The sin. How does it reign in our body? और हम जो ये वचन में पढ़ते हैं कि पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, तो यहाँ पर लिखा तुम्हारे नश्वर शरीर में पाप राज्य न करने पाए। तो पाप कैसे हमारे शरीर पे राज्य करता है? The sin reigns in our body by giving us a fear of death. और पाप हमें मृत्यु का भय दिखाकर, मृत्यु का भय बताकर हमारे शरीर पर राज्य करता है। So when the fear of death comes, we will our body will like to enjoy as much of the pleasures available to us, because the Lord does not give us any promise of life after death. और जब हमारे शरीर पर मृत्यु का भय छा जाता है तब हमारा शरीर इस बात की ओर लालसा करता है, चाहता है कि वह उसके लिए जितना उपलब्ध है उतना वह संसारिक आनंद, जो अभिलाषा का आनंद है, वह उठा सके। So sin will reign in our life by giving us the fear of death. तो पाप जो है वह हमारे शरीर को मृत्यु का भय दिखाकर हमारे शरीर पर राज्य करता है। When Christ came in, the fear of this death is taken away. He has given us promises for eternity, a life after death. लेकिन जब मसीह यीशु आते हैं तब वह इस पाप के भय को, मृत्यु के भय को हमारे जीवन से दूर कर देते हैं। वह उस जीवन को देने की उस प्रतिज्ञा करने के द्वारा कि मृत्यु के बाद का जो वह अनंत जीवन है उसकी प्रतिज्ञा से। So death, we are no longer worried about or afraid of our death, because we have a life beyond that, where all our promises which in Christ is going to happen to us. और यही कारण है कि अब हमें हमारे शरीर को मृत्यु का भय खाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मसीह यीशु ने हमसे उस जीवन को देने की प्रतिज्ञा की है जिसमें हमें परमेश्वर की हर एक वह प्रतिज्ञा और वायदे उस जीवन में जो मृत्यु के बाद का होगा पूरे होंगे। The 13th verse is also a verse which is commanding us to the same thing. Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourself to God as those who have been brought from death to life. Offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. और हम उसका 13वां वचन और यह भी यही बात कहता है, न अपने अंगों को धर्म के अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। When we died with Christ, our flesh, which is a government run by our body and soul, is no more active. तो जब हम पाप के लिए मर जाते हैं तो हमारा जो ये जो सरकार होती है हमारे शरीर के द्वारा चलाया जाता है, यह आगे को कार्य नहीं करता। The body still wants to sin. It wants to sin, but the soul, our soul does not listen to our body. It listens to the Spirit of God. हमारा जो शरीर है वह पाप करना चाहता है, लेकिन हमारे जो प्राण है, हमारा जो मन है, हृदय, वह परमेश्वर का है। But earlier it was listening to the body of sin, but now it is listening to the Spirit, which is contrary to the desires of the flesh.
पहले हमारा जो प्राण था वो हमारे शरीर की सुनता था, लेकिन अब वो परमेश्वर का सुनता है, जो कि इस शरीर की लालसा के बिल्कुल उल्टा है। So that is what this is something this is something which is very complex and difficult for people to understand. But God did it, and it is explained to us through the teaching of the apostles. और यह जो ऐसी वास्तविक सत्य की बात है जिसे हम औरों के लिए समझ पाना बहुत ही कठिन और मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर ने इस कार्य को बताया है करके, और अन्य प्रेरितों के द्वारा, समाचार के द्वारा इस बात को प्रकट किया है। So 14th verse, will come to 14th verse. For sin shall no longer be your master, because you are not under law but under grace. 14वां वचन, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। When we were under the law, we were the righteousness of the law is something which you attain by works. और जब हम व्यवस्था के अधीन होते हैं, तब व्यवस्था की वह धार्मिकता जो कामों के द्वारा आती है, हम उसे प्राप्त करते हैं। That is something which we do with our flesh. That is applicable to a man whose old man is not dead. और यह हमारे शरीर पर लागू होता है कि हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है वह अभी तक मरा नहीं है। But when you come to grace, we go beyond the righteousness of the law to the righteousness of Christ. लेकिन जब हम अनुग्रह के अधीनता में आते हैं, तब हम व्यवस्था से भी परे होकर, ऊपर उठकर हम अनुग्रह के पास आते हैं। So the law was just like a person who is trying to get a pass mark. Somehow you should get a pass mark to pass. और व्यवस्था ऐसा है जैसे कि एक जो बच्चा है वह केवल इतने ही अंक प्राप्त करना चाहता है कि वह पास हो सके। But when the righteousness of Christ came, it is not pass mark, it is 100% marks. लेकिन मसीह यीशु की जब धार्मिकता प्रकट हुई, तो वह यह नहीं कि केवल वह पास होने जितना अंक लेकर आए, परंतु वह पूरे 100% लेकर आए। He is no more worried about passing mark. His aim is to get 100%, become like Christ more and more in his life. क्योंकि उसका उद्देश्य यह नहीं होता कि वह केवल पास होने जितना अंक प्राप्त कर ले, परंतु उसका उद्देश्य पूरा 100% है यीशु मसीह के समान बनना। Such a man is not at all under the law, but he is under grace. ऐसा व्यक्ति किसी भी रीति से व्यवस्था के अधीनता में नहीं है, वह अनुग्रह के अधीन है। When you are under the law, you are it's a law and punishment. We can see in Deuteronomy 28 about the punishments of breaking the law. और हम व्यवस्था विवरण के 28वें अध्याय में पढ़ सकते हैं, वहां पर व्यवस्था का पालन करने और ना करने पर क्या आशीष और क्या दंड है वहां पर। But when you aim to become like Christ, you go beyond the law. So you are far above the 10 commandments. You are becoming more. Your aim is to become like Christ. लेकिन जब आपका उद्देश्य मसीह यीशु के समान बनना होता है, तब आप व्यवस्था से कई परे ऊपर उठकर आप उस बात की ओर देखते हैं। आपका उद्देश्य केवल उन 10 आज्ञाओं का पालन करना नहीं, परंतु मसीह यीशु के समान बनना। Then you are not living in the law and punishment age. You are living in a grace where even if you fall, there is a Father to help you out, to lift you up and help you to walk. तब आपके लिए व्यवस्था का वह दंड नहीं रहता कि आप व्यवस्था का पालन नहीं कर पाए तो आपके लिए वे दंड गिने जाएंगे, परंतु आप परमेश्वर के अनुग्रह के अधीनता में आते हैं कि यदि आपसे पाप हो जाता, आप गिर भी जाते हैं, तो आपका एक पिता जो परमेश्वर है वह आपका अनुग्रह देता है। You are not under the punishment, but you are under the chastening, which will encourage you to become more and more like Christ. और आप आगे को दंड के अधीनता में दंड के भागी नहीं होते हैं, परंतु परमेश्वर की उस ताड़ना के भागी हो जाते हैं। But when you are under the law, each and every time you break the law, you are coming under the curse. You are coming under the punishment of the law. लेकिन हर एक वह समय जिस समय आप व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, आप दंड के अधीनता में आते हैं, आप पर दंड होता है। So that's what this verse says. If you are under the law, the sin will have dominion over you, because you are trying to become righteous by your works, which is a product of your body, your flesh. और यही यह वचन कहता है कि यदि हम व्यवस्था के अधीन है तो पाप हम पर प्रभुता करेगा, क्योंकि हम अपने शरीर के कामों के द्वारा उस धार्मिकता को प्राप्त करना चाहते हैं। But grace is for those who are dead with Christ. Their body of sin is already dead. So grace is for such people. Grace starts where the death happens.
लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर के अनुग्रह के अधीनता में है, उसके अंदर पाप के प्रति मृत्यु हो चुकी है, और जैसे ही अनुग्रह आता है, मृत्यु होती है, अनुग्रह आना शुरू हो जाता है। That's why Bible says Moses came with law, but Jesus came with grace and truth. इसलिए वचन कहता है कि मूसा ने व्यवस्था को लाया, परंतु यीशु मसीह ने अनुग्रह और सच्चाई को लाया है। Brothers and sisters, this is the apostolic doctrine which is very important for us to understand to have victory over sin. अब भाई और बहनों, यह जो सिद्धांत है, यह प्रेरितों की शिक्षा का सिद्धांत, और यह ऐसा वचन है जो हम सभी को समझने और सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। When you are seeing some difficult people who insult you, who make fun of you, or who will, you might have helped them, but they are not thankful to you. Such people, when you see them, you are not able to love them at all because you are in the flesh. और भाई बहनों, हम कुछ ऐसे कठिन लोगों से मिलते हैं कि जो हमारा अपमान करते हैं, जो हमारा मजाक उड़ाते हैं, और यदि हम उनसे प्रेम नहीं पा रहे हैं तो यह इस बात का संकेत है क्योंकि हम अब तक मरे नहीं हैं। That is the time you have to think that don't try anything with your own strength. Don't try to love them or do good to them or anything on your strength, but believe that my body of sin, my body which was under the slavery of sin is dead. और तब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने शक्ति और शरीर के आधार पर अपने शक्ति से कुछ भी प्रयास करने की कोशिश ना करें कि उस व्यक्ति को आप कुछ अपनी ओर से प्रेम दर्शाने और प्रेम करने की कोशिश करें, पर नहीं, आप कोशिश ना करें, परंतु इस बात पर विश्वास करें कि आपके जो पाप का जो शरीर है यह मर चुका है। When you believe that, when you confess that, you will find that inner strength and inner grace comes from you, which will help you to overcome, which speak to that person nicely and overcome that sin. लेकिन परमेश्वर का वह सामर्थ्य, जब आप इस बात पर विश्वास करेंगे और अंगीकार करेंगे, आपके भीतर से परमेश्वर का अनुग्रह आएगा जो आपको इस कार्य को करने के लिए उस व्यक्ति से अच्छे रीति से बात करने और उसके साथ प्रेम दिखाने के लिए मदद करेगा। When you are in the flesh, when you are before your old man was dead, you will be controlled by sin. You will be wondering why you did something wrong. You get angry with someone and hit them, and you will be wondering, how did I lose my temper and hit that person. और तब आप इस बात पर विचार करेंगे कि जब आपका शरीर पाप के अधीनता में था, तब आपने कैसे उस व्यक्ति के साथ में बुरा बर्ताव किया और उस पर हाथ उठा दिया, और कैसे आपने उसके साथ में व्यवहार किया है। But when you believe in the death of your self on the cross, and when you come under the grace, you will be wondering how I spoke graciously to that person, how I did not get angry with that person. लेकिन जब आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि आपका शरीर क्रूस पर यीशु मसीह के साथ चढ़ाया गया है, पाप का शरीर, तब परमेश्वर का अनुग्रह आपको उस व्यक्ति से प्रेम करने के लिए सहायता करेगा, और आप तब आश्चर्य करेंगे और कहेंगे कि यह कैसे हो कि मैंने उस व्यक्ति से अनुग्रह पूर्ण बातें की। Because victory over sin will become a natural thing in your life. क्योंकि पाप के ऊपर जय पाना आपके लिए एक प्राकृतिक रूप से होगा। I heard one story of a man, Pandit Veda Prakash. One incident in his life. I'll tell this and close. और मैं एक व्यक्ति पंडित वेद प्रकाश करके जो है उनके जीवन के एक छोटी सी घटना कहानी के रूप में बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। He was a very important person in the high level government officer in the Indira Gandhi government. और इंदिरा गांधी के समय में जो सरकार थी, उसकी सरकार के समय के दौरान सरकारी कर्मचारी में ये सबसे ऊंचे पद पर थे। His wife became a believer, strong believer. और ये जो व्यक्ति है, जो भाई, इनकी जो पत्नी थी वह विश्वासी बनती है, वह प्रभु का जन बनती है। So this man was a very bad man, like an animal. He used to come and beat his wife every day. और यह जो व्यक्ति है, यह एक जानवर के समान व्यक्ति था, एक जानवर था कि वह हर समय हर रोज आकर अपनी पत्नी को पीटता था। But his wife, used to show him the love of Christ. लेकिन उनकी जो पत्नी थी वह उन्हें मसीह यीशु का प्रेम प्रकट करती थी, दर्शाती थी। One day he came home. His wife, like traditional wives, knelt down to remove his shoes. और एक दिन जब ये भाई घर लौटकर आए, तब इनकी पत्नी, जैसे कि रीति रिवाज के अनुसार पुराने समय में होता था, वह नीचे झुककर उनके पांव में गिरकर उनके जूते खोल रही थी। So this man give her a kick, and her head went and hit the wall, and blood came.
और तब इस भाई ने जो जब इनकी पत्नी इनका पैर से जूते खोल रही थी, इसने पैर से उनको एक लात मार दी और वह उछलकर दीवार में जाकर उनका सर लग गया और उनके सर से खून बहने लगा। Then she, took a cloth and put a bandage on her head, and again came back to remove his shoes. और तब उसने अपने सर पर कपड़ा बांधकर खून रोकने की कोशिश की और फिर से आकर अपने पति के जूते खोलने लगी। So then this man's heart melted completely. He sat on the floor and asked her, "What is that made you love an animal like me?" और तब उस व्यक्ति ने हार मान लिया और उसने एहसास किया और वह अपनी पत्नी के पास नीचे बैठ गया और कहा कि वह क्या बात है कि जो तुम्हें मुझ जैसे जानवर से प्रेम करने को विवश करती है। And she said, I am dead. It is no longer I. It is Christ living in me. It is Christ loving you, not me. और तब उसने कहा कि मैं पूरी तरह से मर चुकी हूँ, मैं जिंदा नहीं हूँ, परंतु अब मुझ में जो जिंदा है वह मसीह यीशु है जो तुमसे प्रेम करते हैं। And this man gave his life to Christ and he became a convention preacher. He traveled many parts of the world speaking the gospel. और तब यह व्यक्ति ने इस व्यक्ति का मन परिवर्तन हुआ, इसने प्रभु को ग्रहण किया और यह बड़े बड़े सुसमाचार प्रचार की सभाओं में जाकर यात्रा कर करके इसने प्रचार किया। Brothers and sisters, this is not a story of one person. This can be a story of each one of us. भाई और बहनों, यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, परंतु यह आप भाई और बहनों, आप सभी यदि इस बात पर विश्वास करते हैं, यह आपकी भी कहानी हो सकती है। Because this gospel is able to deliver us from any sin, however deep it is. क्योंकि भाई और बहनों, इस सुसमाचार में ऐसी सामर्थ्य है, चाहे कैसा भी पाप हो, उससे आपको यह सुसमाचार छुड़ा सकता है। The secret is when Christ died on the cross, my body, which was a slave to sin, died along with him. क्योंकि रहस्य की बात यह है कि जिस समय यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, वे क्रूसित किए गए, मेरा पाप का जो पुराना मनुष्यत्व था वह भी उनके साथ क्रूसित हो गया। When he resurrected, I came out with a body which is free from sin, a body which is slave to righteousness. और जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, वे मुर्दों में से जिलाए गए, तब मैं भी उनके साथ उस नए शरीर के साथ जिलाया गया जिसमें पाप नहीं था। Because I believe in this great historical fact, I can live a life of abundance, a life without sin. और मैं जो इस इतिहास की सत्य वास्तविक बात पर जो विश्वास करता हूँ, अब मैं आगे को पाप के लिए नहीं जीता, परंतु धार्मिकता के लिए। Praise God for this gospel. परमेश्वर की स्तुति हो इस सुसमाचार के लिए। Yeah, Romans 6:14, as we all know, probably the most quoted verse at CFC. और हमने जो रोमियो के अध्याय 6 के वचन 14 को पढ़ा, यह सीएफसी में हम बार बार इसका जिक्र करता हुआ पाते हैं। And as Brother George mentioned, the love of Christ has transformed millions of people in the history. और जैसा कि भाई जॉर्ज ने बांटा और बताया कि मसीह यीशु का जो प्रेम है उसने कई सारे लाखों और करोड़ों जीवनों को परिवर्तन किया है। I was really, besides Romans 6:14, I was really overwhelmed at verse 3 and 4 of this chapter. और जब भाई जॉर्ज बांट रहे थे रोमियो के अध्याय 6 का वचन 14, तब मैं बहुत ही हृदय में लालसा से भर गया। उसका 13वां और 14वां वचन है। It's a bit difficult to understand, but that is the glorious truth. Like those who have been baptized into Christ have been baptized into His death. कि जैसे यह बहुत एक महिमामय बात है कि जो हम वचन में पढ़ते हैं वचन 3 में कि जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह यीशु के मृत्यु का बपतिस्मा लिया। So that means baptism means immersion. When if we are immersed into Christ, whatever happened to Christ has happened to us also. और जब हम कहते हैं मसीह यीशु का बपतिस्मा हमने भी पाया है, अर्थात बपतिस्मे का अर्थ है डुबाया जाना, और हम मसीह यीशु में डुबाए गए हैं, तो जो कुछ मसीह यीशु के साथ में हुआ है वह हमारे साथ भी हुआ है। We didn't die for our sins, but Christ died, and since we are in Him, then we are dead to our sins. और हमने हमारे पापों के लिए प्राण नहीं दिए हैं, यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए प्राण दिए हैं, और हमने जो प्राण दिया है वह पाप के प्रति प्राण दिया है। And the moment He came, since He was resurrected, and since we are in Him, we became a new creation. और जब यीशु मसीह जिलाए गए तब हम भी जिलाए गए और हम उनमें एक नई सृष्टि हो गए। So that means
there will be a change in our nature. The nature to sin will disappear, and a new nature of Christ will come to us. तो अब जो हमारे शरीर में जो परिवर्तन आएगा वह हमारे चरित्र, हमारे स्वभाव में परिवर्तन आएगा कि हमारा स्वभाव मसीह यीशु के समान होगा. Now, for example, last week, Brother George and family traveled to the US. जैसे पिछले सप्ताह भाई जॉर्ज और उनका जो परिवार था उन्होंने अमेरिका की ओर यात्रा की. All they have done was they got into the flight in Delhi and got out of the flight in the US. They didn't travel actually. They just sat and slept in the flight. और हम देखते हैं कि उन्होंने दिल्ली में वे प्लेन में बैठे और वे सीधा अमेरिका में पहुंच गए, वहां पर उतर गए. वे वास्तव में यात्रा नहीं की, परंतु वे प्लेन में बैठे, सो गए और अमेरिका पहुंच गए. Okay, but since they were in the flight, and the flight actually traveled from India to the US, and they could reach the US. और कारण यह था कि वे उस प्लेन के अंदर, उस विमान के अंदर थे, उपस्थित थे, इसीलिए वह प्लेन जब दिल्ली से उड़ा तो वह अमेरिका पहुंच गए. And the moment they get out of the flight, they naturally will start observing the laws of the US. Sorry brother, can you repeat? No, the moment they get out of the flight, they start following the laws of the US. और जिस क्षण वे उस प्लेन से जो अमेरिका में उतरा था, उस प्लेन से जैसे वो बाहर निकले उतरकर, तब उसी क्षण से, उसी समय से उन्होंने अमेरिका के सरकार की जो कानून है उनका पालन करना शुरू कर दिया. For example, we drive on the left here. If Brother George wants to drive there, he has to drive on the right. He can't say I will drive on the left. कि जैसे हम यहाँ भारत में हम बाईं और लेफ्ट साइड, बाईं और हम जो गाड़ी है वो उसको चलाते हैं, तो अमेरिका में भाई जॉर्ज जाकर ऐसा नहीं कह सकते मैं बाईं ओर चलाऊंगा, परंतु उन्हें दाहिनी और राइट साइड चलाना होगा. We will naturally start following the rules of that country, which could be different from our country. तो यह स्वाभाविक रूप से उनके साथ होगा कि वे उस देश के जो सरकार उसके कानूनों का पालन करे, जो कि पूरी तरह से अलग है हमारे देश के कानूनों से. So in the same way, we there's a natural tendency. I mean, our nature will get naturally. We don't like to sin. Well, the moment we accept Christ, the moment we are baptized into Him, so there will be a change in our nature as well. और यह भी हमारे साथ प्रकृति रूप से, स्वाभाविक रूप से होगा कि हम जो पाप को पसंद नहीं करते, मसीह का स्वभाव ऐसा होगा हमारे अंदर, नया स्वभाव, कि हम पाप करना नहीं चाहेंगे. But before you translate, the one thing which is coming repeatedly about dead, if we are dead to sin. और एक बात जो है वह इस रोमियो के अध्याय में बार बार दोहराई गई है, जिसका वर्णन किया गया है, वह यह बात कि पाप के लिए मर जाना. What is the meaning of being dead to sin? और पाप के लिए मर जाना, इसका अर्थ क्या होता है? And this baptism is towards the beginning of our Christian life. और यह जो बपतिस्मा है यह हमारे मसीह जीवन के शुरुआत के समय में, आरंभ में होता है. He's saying if you're dead to sin, then you will live with Christ. कि आप पाप के लिए मर गए हैं तो आप मसीह यीशु के लिए जिएंगे. Does that mean that you have stopped sinning? इसका मतलब क्या यह होता है कि आप पाप करना बंद कर देते हैं? So it says now in verse 7, for he who has died is freed from sin. और 7वां वचन कहता है क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा. So brothers and sisters, the early disciples who at the preaching of Peter, when Peter preached and they were convicted in their heart, and 5,000 of them took baptism, they were dead to sin. और हम जैसे कि देखते हैं शुरुआती दिनों के जो प्रेरित थे और प्रेरित पतरस ने जब प्रचार किया और 5,000 लोगों ने उन्हें पाप का एहसास हुआ और उन्होंने उद्धार पाया, उन्होंने बपतिस्मा लिया था, तो वे पाप के लिए वास्तव में मर चुके थे. What is the meaning of that? That is, meaning is that now from that day onwards, after they came to know about Christ, they in their heart they don't want to commit sin. इसका मतलब यह है कि उन लोगों ने उस दिन के बाद जब उन्होंने मसीह यीशु को अपना जीवन समर्पित किया, मसीह यीशु उनके हृदय में आ गए और वो आगे को पाप करना नहीं चाहते. Now that they believed in Christ, now for them sin is something which they don't want to do. और मसीह यीशु उनके हृदय में आ चुके हैं, तो अब वे
नहीं चाहते कि पाप उनके अंदर आया, वो पाप नहीं करना चाहते। These are people who are dead to sin. और ये ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लोग हैं जो पाप के लिए मरे हुए हैं। But if we confess Christ and we come without this attitude, then we find that we are also not raised up with him. लेकिन यदि हम मसीह यीशु के पास आते हैं और हमारे मन की भावना ऐसी नहीं होती कि हम मर चुके हैं पाप के प्रति, तब हम उसके साथ मसीह यीशु में नहीं जिलाए जाएंगे। This is very important, because the Bible says in 2 Corinthians 5:17 that if any man is in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things become new. क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5:17 कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। And the reason about that verse I discovered only very recently, how a person when he accepts Christ becomes a new creature. और इस वचन की जो सत्य की जो भेद है सत्य की बात का, वह मैंने हाल ही में मैंने खोजा है It's कि एक found, व्यक्ति कैसे नया हो जाता है जब वो मसीह यीशु के पास आता है। yeah, verse 6 says, knowing this, that our old self was crucified with him, that our body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. This is the first part. और रोमियो 6:6 में हम पढ़ते हैं, जो कि वचन का पहला भाग है, कि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। So the person who is dead to sin, as we understood, is now his old self. My old Matthew is crucified with Christ, and that the body of sin might be done away with. So that happened. That God has done this. God has put my old self on the cross with Jesus. और यहाँ पर हम जो पढ़ते हैं कि हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है, जो कि पाप का जो स्वभाव था, जो मेरा मैथ्यू का, वह परमेश्वर है जिसने यह कार्य किया है कि पुराने उस स्वभाव को क्रूस पर चढ़ा दिया है। And then it didn't remain there. When Jesus was raised up, because sin had no power over Jesus, because he did not commit sin, Jesus was raised. And in Ephesians chapter 4 verse 24, और यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, इस कारण मृत्यु की उस पर कोई प्रभुता नहीं थी, इसलिए। और जब मसीह यीशु जिलाए गए थे, और हम इफिसियों अध्याय 4 में पढ़ते हैं, verse 24 says, and put on the new self, which is in the likeness of God and been created in righteousness and holiness and truth. इफिसियों अध्याय 4:24, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। So another miracle, another truth happened. First was our old self was crucified with Christ, but when Jesus was raised, we were raised up with him as a new man, and who is created in the righteousness and holiness of truth. It's a different new man, that's why we are a new creature in Christ. और जैसे कि हम पढ़ते हैं कि जब मसीह यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे, तब उनके साथ हमारा जो पुराना मनुष्यत्व था वह भी मारा गया, और जब मसीह यीशु जी उठते हैं तब उनके साथ हमारा जो नया मनुष्यत्व है, जो सत्य की धार्मिकता पवित्रता में सृजा गया, हम पूरी तरह से नए व्यक्ति बन जाते हैं। So it's very important that when we take baptism, it should not be a ritual, but it should be something that we should know that we are dead to sin, meaning that we don't want to sin anymore. Not that we will not fall, but that we don't want it, and that is before God, and then this miracle happens. और यही कारण है कि जब हम बपतिस्मा लेते तो उसे न केवल एक रिवाज और रीति के रूप में हम उसे जाने, परंतु उसका वास्तव में इस बात की ओर संकेत जाने कि पाप के प्रति हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है वह मर चुका है, कि हम आगे को पाप करना नहीं चाहते हैं। Yeah. I just want to share an analogy of what we've been listening. तो मैं आप सबसे बांटना चाहता हूँ संक्षिप्त में जो भी आज हम सुन रहे थे। A comparison analogy, something we see in the Old Testament what God did. मतलब मैं आप लोगों के साथ एक तुलना बताना चाहूँगा कि जो हम देखते हैं पुराने नियम और अभी जो हम सुन रहे थे उसके विषय में। We are hearing about the old man and the flesh. These are two separate things. तो हम सुन रहे थे हमारे पुराने मनुष्यत्व के विषय में और
flesh, sharir. और हमारे शरीर के विषय में। These are two separate things. और ये दोनों अलग अलग बातें हैं। God has done away with the old man. That's what we're reading on the cross. परमेश्वर हमारे जो पुराना मनुष्यत्व है उसके साथ उन्होंने काम अपना खत्म कर दिया है। यही हमारा क्रूस पे हम देखते हैं। Old man was crucified on the cross, but flesh is not crucified. तो जो हमारा पुराना मनुष्यत्व है वह क्रूस पर क्रूसित हुआ, परंतु जो हमारा देह है वह क्रूसित नहीं हुई। The old nature is like the Egyptians. We see God buried them under the Red Sea. They died once for all the Egyptians. तो जो हमारा पुराना जो चरित्र है वह उस समान है कि जैसे जो मिस्र देश के लोग थे वे नाश कर दिए गए थे जब लाल समुद्र के पास वे आए थे। Moses had told that the Egyptians whom you see now, you will never see them again. That's the old man. तो मूसा ने उनको बताया था कि जो मिस्र देश के लोग आप अभी देख रहे हो वो कभी नहीं देखोगे, और वही हमारा पुराना मनुष्यत्व है। That is symbolical of old man which was crucified on the cross. That old man should never harass us if we are genuinely coming to the newness of life. That old person who blames us, condemns us of a past sin, that should not bother us now. और यही दर्शाता है हमारे पुराने मनुष्यत्व को जो कि क्रूस पर नाश कर दिया गया है, और अभी इस समय में वह जो पुराना मनुष्यत्व है वह हमें दोष नहीं लगा सकता या हमें किसी बात के लिए गलत नहीं ठहरा सकता। And the flesh is that we have various kind of lusts that are there in our flesh, which tempts us to sin and we fall. But God is there to help us in the battle, just like God was with the Israelites to battle the new enemies, to conquer the land, to go towards the land of Canaan. It is symbolical in that manner. परंतु जो हमारा शरीर है वह उससे ही हमारी अलग अलग प्रकार की लालसाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे व्यभिचार की लालसा है या फिर गुस्सा है। I was thinking like how God did a work in me when I was not born again, and when I was saved, I was myself surprised. What happened here? Something happened with me. That foul language, that using of bad language in normal conversation had completely stopped, and I was surprised. That was like old man was dead. That old nature to sin had gone. This happened some 10-15 years ago. तो जब परमेश्वर ने मेरे अंदर कार्य किया तो मैं भी इस बात से चकित रह गया कि मेरे अंदर क्या हो गया है। मैं एकदम बदल गया हूँ। जो पुराना मेरा जो स्वभाव है वह पूरी तरह से बदल गया है। जैसे अलग गंदी भाषा इस्तेमाल करना वह सब बदल चुका था। ये हुआ था कुछ करीबन 10-12 साल पहले। Yeah, but in the new life there is flesh and we have to battle it. Bible says that by the Spirit we'll slay the deeds of the flesh. So God will help us, just like God helped the Israelites to fight the new enemies, Canaanites and people like those. So thank God for His word, which encourages us. परंतु जो हमारा देह है उसमें अभी भी अलग अलग प्रकार की लालसाएं हैं जिससे हमें लड़ते रहना है। जैसे कि जो इजरायली लोग थे उनको भी अलग अलग प्रकार के दुश्मन जैसे जो कनानाइट जो कनान देश के लोग थे उनसे सामना करना पड़ा था, वैसे ही मुझे भी सामना करना पड़ेगा। और शरीर की अभिलाषाओं से सामना करना पड़ेगा। That is symbolical of those enemies of Israel. तो ये जो शरीर की अभिलाषा है ये सब दर्शाती हैं उन शत्रुओं को जो इजराइल के विरुद्ध में थी। Which God will, with the slaying of the spirit, with the help of the spirit, I can slay these lusts of the flesh. और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैं इन जो मेरे देह के जो लालसाएं हैं उनको मैं मार सकता हूँ। Until the day of Christ. और यीशु मसीह के आने तक। When we are born again, that old man is crucified with Christ. यह बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य की बात है जो हमने सुना कि हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है वह मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। The old man is the man who wants to sin.
और जो पुराना मनुष्यत्व है वह ऐसा व्यक्ति होता है जो पाप करना चाहता है, but we have got the flesh with us till we are on this earth. और लेकिन हमारे पास एक शरीर दिया गया है और यह हमारे पास तब तक रहेगा जब तक हम इस धरती पर जीवित हैं। So the man who wants to sin is gone, but as we heard, there is a new man. That man has to be. That man is that new man is now dealing with the flesh. Flesh is it can trip him and it can make him fall. और हमारा जो शरीर है जो जिसमें पाप के गुण होते हैं, लेकिन हमारा पुराना मनुष्यत्व जो पाप करना चाहता था वह जा चुका है। अभी शरीर के साथ में जो है वह हमारा नया मनुष्यत्व है। हमारा जो शरीर है वह कभी चालाकी कर सकता है जिसके द्वारा हम फिसल कर गिर सकते हैं। But that new man has to be strengthened by the Holy Spirit so that it can stand against the flesh. हमारा जो नया मनुष्यत्व है उसे पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य होना जरूरी है ताकि यह शरीर के सामने खड़ा रह सके। We read in verse 11, chapter 6, verse 11, reckon yourself dead indeed to sin. That means each moment I have to count myself, Lord, I'm dead to this, but I'm alive to Christ. और हम रोमियो अध्याय 6 के वचन 11 में पढ़ते हैं, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। कि आप कुछ भी आपके सामने आपके शरीर के सामने करने के लिए आता है, आप कहें कि यीशु मसीह मैं इस बात के लिए मर चुका हूं लेकिन आपके लिए मैं जीवित हूं। Now we can see in verse 13, we can take an example. Do not present where that members come. Just do not present your thought life. Do not present your eyes as instruments of unrighteousness to sin. और हम उसी अध्याय के रोमियो 6 के 13 वचन में पढ़ते कि हम इस रीति से इसे उदाहरण में ले सकते हैं कि न अपने अंगों को, या ऐसा कहें कि न अपने विचारों में जो हम जीवन जीते उससे, या न हमारी आंखों को धर्म के हथियार होने के लिए इस पाप को सौंपें। But present this thought life, this tongue, as is written here, members of instruments of righteousness to God. और लेकिन जैसे ही हम आगे वचन में पढ़ते कि हमारा जो सोच विचार है और हमारा जो जीव है, जबान है, बोलना है, उससे हम परमेश्वर के लिए धर्म के हथियार होने के लिए सौंप दे। Now how it is possible? और यह कैसे संभव है? That the answer comes in verse 14. और उसका उत्तर जो है वह वचन 14 में हम पढ़ते हैं। We are to live not under the law. हमें पाप के अधीनता में होकर नहीं जीना है। Under the law, it's written under the laws of God. We are not just to live under the laws. और हमें न केवल परमेश्वर की जो व्यवस्था है, व्यवस्था के अधीनता में होकर जीना है, but we are to live under grace. परंतु हमें परमेश्वर के अनुग्रह के अधीनता में जीना है। Law only can show how dirty we are. It cannot liberate us. व्यवस्था जो है हमें केवल यही दिखा सकता है कि हम कितने पापी हैं, लेकिन हमें उससे छुड़ा नहीं सकता। But grace is a thing which can lift us out of the present state to a higher, to be like Jesus Christ. लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे जो वर्तमान स्थिति है उस जीवन की हमारे उस जीवन को ऊपर उठा सकता है मसीह यीशु की समानता में। So in one moment, say imagine I looked at with my eye and did something wrong, or imagine I said some words which are not right. उदाहरण के लिए जैसे मैंने अपनी आंखों से किसी बात की और कुछ देखा, मैंने शरीर के द्वारा कुछ गलत किया, या मैंने किसी व्यक्ति से कुछ गलत शब्दों में बातचीत की, then there is only one thing I have to ask. तब मुझे केवल एक ही बात मांगने की आवश्यकता है। Lord, where pride has come that I am not under grace. कि परमेश्वर कहाँ पर मुझ में वह घमंड आ गया कि मैं अनुग्रह के अधीन नहीं हूँ। Because if I am under grace, sin cannot reign over my life. क्योंकि यदि मैं अनुग्रह के अधीनता में हूँ तो पाप मुझ पर प्रभुता नहीं कर सकता। So important to remove that pride and to remain humble and
under the grace all the time. इसलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे अंदर जो भीतर में जो घमंड होता है वो हमसे दूर किया जाना, और महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह की अधीनता में रहें।